Dr. Khan, it is very good that we are talking about a very important topic, which is very much relevant for the health of senior citizens, particularly. Mental health is a big issue related to senior citizens. And since I am heading an organization of senior citizens, I'm very much interested to know how the problem of mental health can be redressed in senior citizens. Dr. Saab, because you are a specialist on this subject, I would like to talk with you on this subject and would like to know how the senior citizens can redress up their own problem. So I would like to know Sorry to since you are interrupt. dealing with the mental health patients. I would like to know what is the reason why this problem is being faced by the senior citizens so much. Thank you, Mr. Chirag and Shuklaji, for inviting me for this platform. I'm highly obliged to be with you. And I feel privileged to be part of this program for helping the old age, the most needy one. जैसा कि आपने शुक्ला जी बताया कि why this group is very special. First of all, I would like to tell you that ki old age populations or senior citizens, they are assets to our populations. At the same time, they are also very vulnerable to different kind of physical or psychiatric illnesses. इनकी इम्पोर्टेंस को मैं बताने के लिए I would like to put some statistics from the World Health Organization. According to WHO, that is World Health Organization, the people of old age, their number are increasing exponentially. According to data given by them, 2015, the total world population, out of total world population, they comprises around 15%, and their number are increasing day by day. So we in a duration of around 10 years, by the end of 2025, we have their population around 200 crores. It means their number are increasing exponentially. So our responsibility and the challenges are also increasing. We have seen these group population, they usually face both physical illness and the psychiatric illness. अगर मैं मानसिक रोगों के बारे में बताऊं तो डिमेंशिया एंड डिलीरियम ये मेजर चंक बनाता है इस एज ग्रुप में इलनेस का. करीब अगर हम 20 करोड़ की पॉपुलेशन आज की तारीख में देखें तो उसमें से 5 से 7 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं. सिमिलरली 5 से 7 करोड़ लोग ही डिमेंशिया से भी पीड़ित हैं. और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस अवस्था को काफी क्रिपलिंग बना देती है और डेली लाइफ को एंजॉय करना, अपने डेली काम करने में मुश्किलात पैदा करती है. इसकी वजह से इस अवस्था में ये आदमी को किसी दूसरे पे डिपेंडेंट कर देती है. देखिए, कोई भी साइकियाट्रिक इलनेस होती है उसके लिए बहुत एक कॉज होते हैं. कोई कारण नहीं होता जिसकी वजह से साइकियाट्रिक इलनेस होती है. लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस रहते हैं कि दे मे लैंड अप इन डिफरेंट काइंड ऑफ साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इलनेसेस. बट दिस एज ग्रुप, particularly the person with more than 60 years of age, they have an additional stressor like
significant ongoing loss of capacity as they advance age, and their decrease in functional ability, reduced mobility, a different kind of chronic pain, and other health issues that require some form of long-term care. Apart from that, these conditions, we have one major issue of elder abuse, means वृद्धा अवस्था में दुराचार. It can be in the form of physical abuse, verbal abuse, psychological abuse, financial abuse or a sexual abuse, जिसकी वजह से कई बार ऐसे बुजुर्गों को नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है, आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है, अबंडनमेंट हो जाता है उनका, लोग उनके फैमिली वाले उनको छोड़ देते हैं. तो that situation create additional stress on their mind, and that in turn in a long term lead to different psychological condition including depression, anxiety and dementia. So these chunk of population that is very large, and that population is very vulnerable to different kind of stress. That's why we should and we will always discuss their mental health on a priority basis. Over to you, Mr. Shukla. डॉक्टर साहब, आपने 3 शब्द इस्तेमाल किए जी, डिप्रेशन, जी, एंजाइटी एंड डिमेंशिया. जी, इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. जी. देखिए, अगर मैं सबसे पहले मैं डिप्रेशन की बात करना चाहूंगा. डिप्रेशन की अवस्था में इस कंडीशन में जो कॉमन लक्षण होते हैं वो ये हैं कि इस एज ग्रुप में किसी चीज में मन नहीं लगता. जिस चीज को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस चीज से हमें खुशी मिलती है, वो खुशी खत्म हो जाती है. हमें नींद आना कम हो जाती है. हमारा डेली टू डेली लाइफ में काम करने में दिल नहीं लगता है. हम होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं. लगता है कि अब जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, अब कोई हमारे सपोर्ट के लिए नहीं आएगा. हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं. और कई केसेस में जब उनको सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता तो आत्महत्या तक के भी ऐसी स्थिति में विचार आ सकते हैं. ये बात हुई डिप्रेशन अवसाद के बारे में. अगर हम एंजाइटी के बारे में बात करें तो जिन बुजुर्गों को, जिन सीनियर सिटीजन को उनके फैमिली वाले छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो उनको नींद ना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बैठे बैठे दिल का ना लगना कहीं पे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है. कई बार तो ये स्थिति पैनिक अटैक का रूप ले लेती है, जिसमें घबराहट, बेचैनी और हाथ में कंपन इतनी बढ़ जाती है कि उसको लगता है कि कहीं मुझे कुछ अब हो ना जाए और मेरे सपोर्ट के लिए कोई है भी नहीं. अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है. वैसे भी माना जाता है उम्र के साथ साथ आदमी की याददाश्त में कमी आ जाती है, बट एज फार एज डिमेंशिया इज कंसर्न, इसमें सिर्फ याददाश्त की कमी नहीं आती है, जबकि याददाश्त इतनी खराब हो सकती है अगर इसको समय रहते नहीं देखा गया तो इसमें लोग अपने लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, इवन अपना नाम बताना भूल जाते हैं, अपने घर वालों का नाम भूल जाते हैं, अपने डेली एक्टिविटी जैसे उनको नहाना है तो उनको बाथरूम का रास्ता नहीं पता, एक बार घर से बाहर चले गए वो घर का रास्ता भूल जाते हैं, कपड़े कैसे पहनना है, कपड़े पहनना है कि नहीं पहनना है, खाना खाया है कि नहीं खाया. मतलब समझ लीजिए अगर ये स्थिति बढ़ती है तो वो दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपनी दिनचर्या भी सही से नहीं कर पाते. जी डॉक्टर साहब, ये हाउ these problems are treated? If only medicines are the solution or some other steps are also required? देखिए, मेडिसिन और दूसरा ट्रीटमेंट ये हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किस स्थिति में है. नो डाउट अगर पेशेंट की कंडीशन काफी मॉडरेट टू सीवियर है देन हमें मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा. लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जो कि अपने दिनचर्या में अगर इस अवस्था के लोग उसको अपनाएंगे तो हम इन बीमारियों को, चाहे वो डिप्रेशन हो, डिमेंशिया हो, एंजाइटी डिसऑर्डर है, काफी हद तक इसको टाल सकते हैं और इसको रोका जा सकता है. उसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और ऐसे लोगों से कहूंगा कि अपनी लाइफ में इन चीजों को अपनाएं ताकि इन बीमारियों से आप बच सकें. तो सबसे पहले जरूरी है कि आप रोजाना 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें.
फिजिकल एक्टिविटी ना ही आपके शरीर को फुर्त बनाती है, एक्टिव बनाती है, आपके माइंड को भी ये एक्टिवेट करती है। ब्रेन के अंदर कुछ एंडोर्फिन होते हैं जो रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आपके मन को खुश रखते हैं, आपकी मेमोरी को शार्प करते हैं। सिमिलरली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मांसपेशी एक्टिविटी होती है। मैं आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूंगा। जब आप जिस भी बॉडी के पार्ट का इस्तेमाल करेंगे उसमें एक्टिविटी आएगी, वो काम करने लगता है, उसके अंदर उसके फंक्शन बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ of old people and mental health of young people. Yes. What is the difference between these two and what is the difference in medication? Okay. देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मैंने बताया, उम्र के साथ जैसी उम्र बढ़ती है, as you progress towards the older age, obviously all the body function they tend to decline. आपका लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, इनकी फंक्शनिंग डे बाय डे एज यू इंक्रीज टुवर्ड्स द एडवांसिंग एज दे डिक्रीज। ऑब्वियसली जब आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो आपको जो डोज दी जाएगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। कई बार पेशेंट ओल्ड एज में वो डोज टॉलरेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिक्लाइन इन द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग डिफरेंट डोजिंग। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अब कई बार इस अवस्था में अब आप देखते हैं कि उनको फिजिकल इलनेस भी होती है, पेशेंट को डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर की भी दवा खा रहे हैं, साथ में स्ट्रोक वगैरह है, पैरालिसिस वगैरह है, क्रोनिक पेन की भी दवा चल रही है, एंड वी एज अ साइकियाट्रिस्ट ऐड ऑन द मेडिकेशन फॉर देयर मेंटल हेल्थ। तो कई बार हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि पॉलीफार्मेसी को अवॉइड करना है, जहां तक हो कम से कम दवाइयां दें ऐसे बुजुर्गों को, ताकि ड्रग से ड्रग का इंटरेक्शन ना हो और कोई नया साइड इफेक्ट क्रिएट ना हो। तो इनकी मेडिकेशंस में हमेशा ख्याल रखना है कि स्टार्ट लो, कम दवाइयों से शुरू करें, गो स्लो। अगर उनको बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो बहुत धीरे, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके अलावा और क्या क्या दवाइयां खा रहे हैं ताकि दवा का दवाई से इंटरेक्शन ना हो। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन इन एल्डरली एज ग्रुप्स। Dr. Saab, we are getting a request from social media. Yeah. Many listeners want you to please repeat on what role caretakers of elderly people can play for a better mental health of elderly people. Sir, Yes, can you sure, please sure. repeat? Yeah, sure. First of all, to take care of someone, you should know their conditions. Suppose if patient is suffering from some kind of psychiatric disorder, the most common I explained already: dementia, depression, anxiety, substance use disorder, insomniac problem. These are the common conditions. So first and foremost, if you want to help someone, you should know their condition. So to know their condition, you have to educate yourself. Then first and foremost thing is educate yourself as much as possible so that you can help them properly. Right? So education is very important. Second most thing is you have to give a proper environment, a secure environment, a freedom to their elderly peoples. Right? And role of NGO is vital, important as a social support system. Thank you, Dr. Saab. Your advice is very helpful for the senior citizens and अच्छा है हम लोग इसको अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सीनियर सिटीजन्स की, उसमें हम उनको ये एडवाइस करेंगे, हम उनको परामर्श देंगे कि जो आपने बताया है उसके हिसाब से ही उनको अपने, अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो सेटल करें, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब आपकी भी हम मदद लेंगे, क्योंकि हम लोग वी आर इन दी बोथ इन दी सेम सिटी। आप भी लखनऊ में हैं, हम भी लखनऊ में हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर some other meeting also for the same purpose. Thank you, Dr. Saab. Thank you.